Hey everyone, I welcome you all at the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a topic that is the chirality, optical activity, absolute configuration, that is R and S system, as well as the L and D system, or we can say the plus or minus system. These are some properties of the biomolecule like carbohydrate and amino acid, which define their classification basis on their stereochemistry. So these are very important properties which are generally asked and which are very important for the concept building of the other topics. So this is for the GATE Excel as well as the CSIR NET exam, as well as the students of the BSc MSc Life Sciences. So let's just start with the video. So moving on to our topic, in between, I must tell you about a learning platform that is the Unacademy. You can boost up your preparations for the various competitive examinations with the help of the Unacademy. You can join the Unacademy Plus subscription as well as the Iconic subscription for various exams like the GATE Excel, GATE Biotechnology, and the GATE ESC as well as the CSIR NET exam. They also conduct the All India mock test exams for the GATE 2020 for every Sunday from January 2 to January 30. You can enroll for this particular mock test for various exams, and for the GATE aspirants, the link for the enrollment I will give in the description. There is specifically a mega combat for the GATE and ESC aspirants on the January 23, that is Sunday, at 11 a.m. You can also join this mega combat and can win different prizes and different gift vouchers. The link for the mega combat is also given in the description, where you can register and participate in this mega combat for the GATE students. At Unacademy, you can clear all your doubts at a live time. You can raise a hand in between a class, or you can talk to your educator in a live class by raising a hand. So it will create a classroom-like environment on the platform, on the online platform also. You can also ask your doubt even post class. आप क्लास के बाद भी अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं. You can take a picture of the doubt, or you can type the doubt and can send to your particular educator. If you are an Unacademy Plus subscriber, you can ask the doubt anytime on the Unacademy. Unacademy provide interactive live classes. They also generate polls for the learners where you can clear your doubts as well as the group discussions. You can never miss a class. You can get a recording of the class later as well. And you're also getting alerts or the notification for the class for a particular time. You're also having the PDF notes for any concerned topic or any class, and anytime, anywhere. You can access all of the recordings. If you're a Plus subscriber, you can access all of the educators and their recordings anytime to prepare your notes and to get their PDF notes. So these are also some perks that the Unacademy provide on the learning platform. Along with the Plus subscription of the Unacademy, they also offer the Iconic subscription, where you can access your educator, or you are having access with your educator in a live time, where you can clarify your concepts, you can discuss your doubts, and you can have the live mentoring sessions for the exam strategy, even in the Iconic subscription. And in the Plus subscription, you can access all the perks that we have just discussed, like live classes, video recordings, as well as the PDF notes. The GATE ESC aspirants can join the new batches for the GATE 2K23 and 2K24. The batches are starting from the 19th of the January. So all of the aspirants which are targeting the 2023 and 2024 GATE, they can join the various branches according to their concerned branch, like mechanical, civil, or the electrical. Using a code YG10, you can join the Unacademy Plus subscription and you will get a 10% discount on your subscription. So let's just start with our topic. Chirality is the property of any carbon. कार्बन के साथ जो भी चार फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, like I'm saying A, B, C and D. If all the functional groups that are attached to a carbon are all different, अगर सभी चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, so that carbon is called chiral carbon. किसी भी मॉलिक्यूल में, any of the biomolecule or any of the molecule may have one chiral carbon or more than one chiral carbon. तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन होते हैं, इवन वन और मोर देन वन, सो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल. उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं. सो कायरल मॉलिक्यूल में या पर्टिकुलरली कायरल कार्बन पर चारों जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग अटैच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड में क्या होता है, सपोज दिस इज द कार्बन, यहाँ पर एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ साइड चेन होती है. एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कायरल नहीं है एक्सेप्ट ग्लाइसिन,
बिकॉज उसकी साइड चेन इटसेल्फ हाइड्रोजन, खुद हाइड्रोजन होती है, तो दैट विल लुक लाइक दिस इन कार्बोक्सिलिक। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्योंकि दोनों एक जैसे ग्रुप हो गए, इसीलिए वो कार्बन यानी वो अमाइन एसिड दैट इज ग्लाइसिन वो कायरल नहीं होता। अदरवाइज ऑल जो सारे बाकी अमाइन एसिड है दे आर कायरल। सिमिलरली मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ रहे थे प्रीवियस पार्ट में, हमने मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो यहाँ भी पर्टिकुलरली हम मोनोसेक्राइड्स के लिए ही बात करेंगे इन सब प्रॉपर्टीज की। तो मोनोसेक्राइड्स भी कायरल होते हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या होता है, CH2OH कीटोन ग्रुप एंड CH2OH। तो ये जो पहला कार्बन है यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, तो ये कायरल नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड कार्बन है ये टेट्रावैलेंटी नहीं है, तो ये भी कायरल नहीं है, और क्योंकि ये 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, बॉन्ड तो 4 बना रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप 4 नहीं है। थर्ड जो कार्बन है इस पर भी CH2OH है, ये भी कायरल नहीं है। तो केवल इस मोनोसेक्राइड को छोड़कर, जैसे ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है अमाइनो एसिड्स में, बाकी सारे अमाइनो एसिड कायरल है, ऐसे ही मोनोसेक्राइड्स के अंदर भी जैसे DHA डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी जो है कायरल नहीं है। इसके अलावा ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें, CH2OH CHOH CHO, तो पहला जो कार्बन है यहां से नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ भी जो है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज लाइक दिस, तो यहाँ भी 4 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये भी कायरल नहीं है। सेकंड कार्बन जो है दिस वन, दिस कार्बन इज कायरल बिकॉज ये एक तरफ H से अटैच है, एक तरफ OH से अटैच है, एक तरफ CH2OH कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, एक तरफ एल्डिहाइड से अटैच है। तो इसके चारों ग्रुप देखिए अलग अलग है, CH2OH ग्रुप, हाइड्रोजन, OH और चौथा है एल्डिहाइड ग्रुप। तो सेकंड कार्बन कायरल है, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, ये कायरल है। थर्ड कार्बन फिर से कायरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए DHA तो नहीं था कायरल क्योंकि इसमें तीनों ही कायरल नहीं थे, बट ग्लिसरल्डिहाइड कायरल मॉलिक्यूल है, यानी मोनोसेक्राइड सारे कायरल होते हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें एक एग्जांपल हमने पढ़ा ग्लिसरल्डिहाइड। तो दिस इज द कायरल कार्बन। सिमिलरली ग्लूकोज में भी मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज की भी बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज में भी कायरलिटी होती है, CH2OH, दिस इज द कार्बन। Similarly, if I'm talking about, this is the fructose. Let me draw the glucose first. The aldehyde group, then CHOH, again CHOH, configuration will be different, then CHOH again, as there are 6 carbons total, H and the CH2OH. एल्डिहाइड इधर है तो यहां से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो ग्लूकोज में देखिए कितने कायरल कार्बन है ये हम देखते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एक मोनोसेक्राइड था 3 कार्बन का, ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है 6 कार्बन का, तो इसमें कितने कायरल है, इसमें पहला कायरल नहीं है क्योंकि वो टेट्रावैलेंट ही नहीं है। दूसरा कार्बन देखते हैं, दूसरे पर एक तरफ तो एल्डिहाइड है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, और चौथी तरफ ये पूरी साइड चेन है पूरी की पूरी, तो चारों ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब सेकंड कार्बन कायरल है। फिर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पर एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ ये साइड चेन है पूरी और एक तरफ ये साइड चेन है थर्ड के लिए, तो चारों चीजें अलग अलग है क्योंकि ये साइड चेन अलग है, ये साइड चेन अलग है, तो थर्ड भी कायरल है। सिमिलरली फोर्थ कार्बन, अगर आप देखेंगे इसी तरह से यही कंसेप्ट, HOH इधर साइड चेन, इधर साइड चेन, ये छोटी साइड चेन, वो बड़ी साइड चेन ऊपर की तरफ, तो फोर्थ भी कायरल है। सिमिलरली फिफ्थ भी कायरल होगा क्योंकि सारी चीजें अलग है। बट सिक्स्थ कार्बन फिर से कायरल नहीं है क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है। तो ग्लूकोज में 6 में से 4 कार्बन जो है वो कायरल है। तो देखिए ग्लूकोज भी कायरल मॉलिक्यूल है, और ग्लिसरल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड था, वो जो भी मोनोसेक्राइड था 3 कार्बन का, वो भी कायरल था। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट the biomolecules, especially if I'm talking about the monosaccharides right here, अभी ये मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर, बस इसको छोड़कर बाकी सारे जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो कायरल होते हैं। सिमिलरली जब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो वहां अमीनो एसिड के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में, तो वहां अमीनो एसिड भी ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे कायरल है। मोस्ट सिंपल डेफिनेशन जो कायरल की है, दैट इज द ऑल 4 फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव।
कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, या जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके पास जनरली कायरल कार्बन होता है। दोनों बातें हम बोल सकते हैं। सो दे बोथ आर लिंक्ड। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको रोटेट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स। विच मॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव और विच आर हैविंग कायरल कार्बन। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट जो किया जा सकता है वो दो तरह से किया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए एक नॉर्मल लाइट का सोर्स है, द लाइट इज इंसिडेंट और स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, दिस इज द नॉर्मल लाइट। whenever the normal light is passes through a polarizer, जब इसको पोलराइजर से पास कराया जाता है, so it would be polarized, इसके पोल्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पोलराइजर के बाद लाइट इस तरह से दिखेगी, there would be one polarity, like this is the polarized light now. अब होता क्या है जब पोलराइज्ड लाइट दी जाती है ना कि नॉर्मल लाइट, इफ द पोलराइज्ड लाइट इज गिवन टू अ कायरल मॉलिक्यूल, तो मान लीजिए हमने एक ट्यूब लिया है, दिस इज द ट्यूब, better I should draw a cylinder. Okay, I will make this as a cylinder like this. So this cylinder contains chiral molecule, any of the chiral molecule. Here we are talking about monosaccharide, that may be amino acid also. So a chiral molecule is placed inside this sample tube. So once the plane polarized light will enter into this chiral molecule, it will be scattered or it will be rotated. तो rotate जब भी होगी उसकी दो probabilities हो सकते हैं, it may be rotated right in the right direction or the clockwise direction like this. हो सकता है इस तरफ रोटेट हो जाए यानी क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले इस तरह से था पोलराइजेशन, अब रोटेट हो गया है क्लॉकवाइज। इट मे ऑल्सो रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से भी रोटेट हो सकती है। सो देयर आर बोथ द केसेस, दोनों केस हो सकते हैं। जो पोलैरिमीटर जो सैंपल ट्यूब है उसके अंदर जब कायरल मॉलिक्यूल रखा गया तो पोलराइज्ड लाइट को ये मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। इसीलिए कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मींस दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रोटेशन को मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसको पोलैरिमीटर कहते हैं। ओके, और एग्जैक्ट जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम कहें कि ये कायरल मॉलिक्यूल ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है या दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसको जो मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड को, वो जो मेजर किया जाता है वो और एंगल से मेजर किया जाता है, रोटेशन के एंगल से, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये डायरेक्ट एंगल नहीं होता, ये एंगल जो कहलाता है ये ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा कहलाता है। ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन जो है इससे मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। कायरल मॉलिक्यूल जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए कायरलिटी के साथ हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को लिंक किया है। दूसरी बात, इसको रोटेट करने के बेसिस पर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको हम डी या एल से डिनोट करते हैं या प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। वो सभी मॉलिक्यूल्स जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, या राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उनको हम कहते हैं डी रोटेटरी, ठीक है, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फर्स्ट फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई मॉलिक्यूल और उसकी फॉर्म मान लीजिए ग्लिसरॉल्डिहाइड है या एलेनिन है, तो एलेनिन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो एलेनिन जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरफ राइट हैंड डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इस तरफ ऐसे। तो अगर राइट हैंड में रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, या उनको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में वो रोटेट करते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं।
तो डेक्स्ट्रो और लीवो स्टैंड्स फॉर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम डी और एल लिखते हैं। मान लीजिए एलेनिन है एक अमाइनो एसिड, तो अगर एल एलेनिन है, अगर एल एलेनिन को हमने सैंपल ट्यूब में रखा है तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पोलराइज्ड लाइट को। अगर डी एलेनिन है तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो इसको डी एलेनिन या एल एलेनिन या नेगेटिव एलेनिन और प्लस एलेनिन से डिनोट हम कर सकते हैं। तो एल स्मॉल डी माइनस और प्लस का साइन ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए जो है यूज किया जाता है किसी भी बायोमोलिक्यूल की जो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जनरली वही होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन हो, चाहे एक हो या उससे ज्यादा हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। द मेन थिंग टू बी रिमेंबर इज दिस, that D molecules are dextrorotatory, which rotates the plane polarized light in right hand, or better we should say clockwise. It is also called plus molecule. इसको plus से भी denote करते हैं। The L molecule, like L-alanine, is levorotatory. L stands for left, which rotates the light in left direction or the anti-clockwise direction. Denoted also as a negative sign, negative molecule. So D and L system, the small d L system and plus minus system is used for the optical rotation. As I already told you, magnitude is measured in specific rotation or optical rotation. ऑप्टिकल रोटेशन में मेजर करते हैं कि कितना, कौन सा ज्यादा जो मॉलिक्यूल है, कोई भी कायरल मॉलिक्यूल, वो कितना ज्यादा रोटेट करता है लाइट को। सो दैट इज designated as alpha. Alpha का जो फॉर्मूला होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एट ए वेवलेंथ लैम्डा। अगर वेवलेंथ जो है 559 नैनोमीटर है तो उसको D से डिनोट किया जाता है। दिस फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस, TD, if the wavelength is 559 nanometer. So they both are same. That is equal to the observed rotation. It is observed rotation. The real rotation which is being showing up like this, for example, it is being rotated like this up to 30 degree. So this is the observed rotation. So observed rotation cannot directly tell the value of magnitude of the optical activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है उसका डायरेक्ट मेजरमेंट केवल जो है ऑब्जर्व रोटेशन नहीं दे सकती, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए किसी ने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, दूसरे ने उसको 70 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं है। ये सॉल्यूशन पर और लेंथ पर, सैंपल ट्यूब की बहुत सी चीजों पर ये डिपेंड होता है। इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू में C. C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्राम पर ml में ली जाएगी, दिस थिंग टू बी रिमेंबर। अगर ग्राम पर ml में नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। लेंथ जो हमेशा डेसीमीटर में ली जाएगी, डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में दिया है उसको हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 डेसीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो सेंटीमीटर में दिया, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया है तो L हम लेंगे 2 डेसीमीटर। सो लेंथ शुड ऑलवेज बी टेकन इन द डेसीमीटर, C should always be taken in the gram per ml. So this is the overall formula of the optical rotation. This one. That optical rotation or the specific rotation is equal to the observed rotation in the degree A0 or A degree divided by L into C. This is the formula for finding the magnitude of optical rotation. जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा ऑप्टिकल रोटेशन का, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्रक्टोज, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं या बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं 2 कॉन्फ़िगरेशन में। मे एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस। उन 2 कॉन्फ़िगरेशंस को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिस अलग था, वहां पर भी 2 कॉन्फ़िगरेशन थे L और D, जो बेस थे ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कि प्लेन पोलर लाइट को कहां रोटेट करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बेस होती है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर,
कि किसी भी बायोमोलिक्यूल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो किस साइड में अटैच है। कायरल कार्बन पर, ऑन कायरल कार्बन देयर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन विच साइड। सबसे पहले अमाइनो एसिड से समझते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन एक ही होता है जनरली, एक अमाइनो एसिड में। ठीक है, साइड चेन में वेरी कर सकता है बट जनरली एक ही कायरल कार्बन हम मानते हैं। ये I'm drawing it again without some confusion. This is amine group, this is carboxylic group, this is hydrogen and this is side chain. ये कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइसिन कायरल नहीं होता। तो यहां हम देखते हैं अमाइन ग्रुप की पोजीशन कि कायरल कार्बन पर, दिस इज द कायरल कार्बन, इस पर अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। यहां पर राइट नाउ ये आई शोन इन द राइट साइड। सिमिलरली यहां भी हो सकता था NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप H एंड R, यहां अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में। तो कायरल कार्बन पर लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस बेस पर फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है किस तरफ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर राइट हैंड साइड में है तो वो होती है डी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होती है L एंड D। वही लीवो और डेक्स्ट्रो जो है वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया L एंड D को, हम लेफ्ट राइट बोलते हैं, ऐसे ही ग्रीक में या लैटिन में लीवो और डेक्स्ट्रो बोलते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड में है फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस, अमाइन ग्रुप कार्बन के, कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में है, तो ये डी अमाइनो एसिड है। अगर अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो ये L अमाइनो एसिड है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि हम मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन पर अगर राइट साइड में है तो वो डी मोनोसैकेराइड है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन पर लेफ्ट साइड में तो वो L मोनोसैकेराइड है। एग्जांपल से अभी हम इसको देखेंगे। तो L एंड D कॉन्फ़िगरेशन दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। ये एक ओल्ड सिस्टम है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का, एक नया भी सिस्टम है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम, L एंड D सिस्टम इज commonly used but old system। आपने सुना होगा डी ग्लूकोज, L ग्लूकोज, हालांकि डी ग्लूकोज ज्यादा कॉमन होता है। तो देखिए सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल समझते हैं। अमीनो एसिड में तो हमने देख लिया एक ही कायरल कार्बन है। ग्लिसरल्डिहाइड को देखते हैं हम। ग्लिसरल्डिहाइड को दो कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है, CHOH एंड CHO। दिस इज द एल्डिहाइड। सेकंड थिंग इज दिस OH, H और CHO, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है। देखिए केवल कायरल कार्बन देखना है, यहां पर कायरल कार्बन केवल एक ही है। कौन सा? कार्बन नंबर 2, जो सेकंड कार्बन है ये कायरल है, बाकी तो कायरल है ही नहीं। तो सिर्फ कायरल कार्बन पर देखना है। और इनका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर राइट हैंड में है। राइट हैंड में होने पर L एंड D सिस्टम में मैंने आपको बताया था, अगर राइट हैंड में फंक्शनल ग्रुप है तो D है, अगर लेफ्ट हैंड में है तो L है। तो ये हो जाएगा D ग्लिसरल्डिहाइड। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हो जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड। इस तरह से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में दो फॉर्म्स लिखे जाते हैं। ये दोनों फॉर्म स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, और टोटल दोनों फॉर्म्स, देखिए स्टीरियो आइसोमर्स तो मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट दोनों कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म्स को एक दूसरे का इनैंशियोमर बोलते हैं। इनैंशियोमर, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, उसमें चाहे एक ही कायरल कार्बन हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 या उससे भी ज्यादा, उनके अंदर इनैंशियोमर्स तो 2 ही होंगे, ऑलवेज 2। बट स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन 2। देखिए जरूरी नहीं सारे मोनोसैकेराइड में एक ही कार्बन कायरल हो। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तब हमें क्या पता चले कि हम किस कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें। ये तो तब की बात है जब अमाइनो एसिड में भी एक ही कार्बन था, हमने अमाइन ग्रुप उसी का देख लिया, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड में भी एक ही कायरल कार्बन है, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लिया। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो वहां इनैंशियोमर तो 2 ही रहते हैं, D और L। ये D और L जो एक दूसरे की स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर भी कहलाते हैं, बट वहां स्टीरियो आइसोमर्स ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है, ग्लूकोज से एग्जांपल हम समझते हैं, एल्डिहाइड OH, यहां पर H, फिर से CHOH, आई एम राइटिंग द ग्लूकोज। देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 6। ये कार्बन भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन है। अब हमें क्या पता चले ये L है या D है, कौन से कायरल कार्बन पर हम OH देखें। अगर आप सेकंड को देखेंगे तो OH राइट में है, आप थर्ड को देखेंगे तो OH लेफ्ट में है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर फारदेस्ट, जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है फ्रॉम एल्डोज और कीटोज, क्योंकि ये एल्डोज या कीटोज होते हैं मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक एल्डोज है, फ्रक्टोज एक कीटोज होती है। तो इस ग्रुप से एनोमेरिक कार्बन से, पहले कार्बन से मैक्सिमम दूर कौन सा है, तो ऑफकोर्स बात है हाईएस्ट नंबर, फारदेस्ट का मतलब हाईएस्ट नंबर कार्बन। कायरल कार्बन तो सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है, पांचवा। या फारदेस्ट कौन है, सबसे दूर कौन है। अब जनरल सी बात है दूर ही होगा, जो हाईएस्ट नंबर वाला है वही दूर होगा, क्योंकि नंबरिंग हम लोअर इस ग्रुप से करते हैं। अगर ये कीटोन होता, देखिए फ्रक्टोज भी ड्रॉ कर देता हूं साथ ही साथ, अगर ये फ्रक्टोज होता, ये ग्लूकोज है, तो भी हम फारदेस्ट लेते हैं। फ्रक्टोज में हालांकि 3 कायरल कार्बन होते हैं, 4 नहीं होते। ग्लूकोज में 4 होते हैं, क्योंकि वहां ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें ये टेट्रावेलेंट नहीं है। ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें भी सबसे दूर वाला 50 होता। तो फारदेस्ट या हाईएस्ट नंबर का जो कायरल कार्बन होता है, जब एक से ज्यादा हो, एक में तो हमें पता है भाई, अगर एक ही कायरल कार्बन जैसे ग्लिसरेडियाइड में, तो उसी पर हम देख लेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो हाईएस्ट नंबर वाले का हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। देखिए पांचवें में OH राइट साइड में, तो ये हुआ डी ग्लूकोज। सिमिलरली यहाँ फ्रक्टोज में पांचवें कायरल कार्बन में OH राइट साइड में, ऑन द फिफ्थ कायरल कार्बन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड, तो ये भी डी फ्रक्टोज है। अगर पांचवें कार्बन पर OH लेफ्ट में होता तो वो L ग्लूकोज होता। तो L ग्लूकोज रेयर है, नेचर में डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा अबंडेंट है। सो दीज टू आर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो L ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, देखिए कैपिटल L और कैपिटल D, नॉट स्मॉल d स्मॉल l, बिकॉज वो ऑप्टिकली एक्टिविटी में थे। तो L ग्लूकोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। तो इनैंशियोमर हमेशा ही 2 होते हैं, या तो L फॉर्म होगी या D फॉर्म होगी। ये एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन कहलाती है। हम देखते हैं OH किधर है, अमाइनो एसिड में हम NH देखते हैं, तो केवल एक ही कायरल कार्बन का देखेंगे। अगर एक है तो उसी का देख लेंगे, एक से ज्यादा है तो हम फारदेस्ट या हाईएस्ट नंबर वाले का देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। अगर कायरल कार्बन एक से ज्यादा है, इफ मोर देन 1 कायरल कार्बन, अगर एक ही कायरल कार्बन है तो 2 ही स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो उसके लिए ले वेंट ऑफ रूल लगता है, ले वेंट ऑफ रूल। उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया काउंट करने के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स of chiral molecule is equal to 2 to the power n। चाहे एक कायरल मॉलिक्यूल हो, चाहे कितने भी कायरल मॉलिक्यूल, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया जहां n स्टैंड करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब मान लीजिए मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ग्लूकोज एक ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही। तो देखिए ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, 2 टू पावर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ग्लूकोज में है 4, तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन है, 2 टू पावर 1, 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन होते हैं तो 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो हर एक कायरल कार्बन का खुद का कार्बन स्टीरियो सेंटर कहलाता है, और उस स्टीरियो सेंटर के अकॉर्डिंग स्पेस में स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग तरह के स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। ग्लूकोज के 16 बन सकते हैं क्योंकि उसके पास 4 कायरल कार्बन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 ही क्योंकि उसके पास 1 है। तो ये है फॉर्मूला 2 टू पावर n, जिसको ले बेल वेंट ऑफ रूल कहते हैं। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं
किसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। इनैंशियोमर्स दो ही होते हैं, एल एंड डी, जिनको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। So this is the absolute configuration L and D system, which is the most common system, यही चलता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा एक सिस्टम और होता है R and S सिस्टम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक और बताना चाहूंगा, जो स्टीरियो आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं एक दूसरे के। देखिए कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल कोई भी हो, चाहे वो अमीनो एसिड क्यों ना हो, सभी एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं। अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो अमीनो एसिड्स के लिए भी है, या बायोमोलिक्यूल्स में केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है, वो अमीनो एसिड पर भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, बट राइट नाउ उनको हम कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस से ही डिस्कस कर रहे हैं। सो फार आई हैव डिस्कस्ड द प्लस माइनस सिस्टम, द DL सिस्टम व्हिच इज सेम बेस्ड अपॉन द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी मॉलिक्यूल इन दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है और L and D कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसी में एक और सिस्टम आता है R and S सिस्टम। ठीक है, अगर L and D लिख रहे हैं तो S and R सिस्टम लिखेंगे, थोड़ा कंपेरेबल है, या RS सिस्टम, जिसको सिनिस्टर रेक्टस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सिनिस्टर रेक्टस भी ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है लेफ्ट और राइट। सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट होता है और रेक्टस का मतलब होता है राइट। तो उसमें भी हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ही फाइंड आउट करते हैं। वहां भी दो ही फॉर्म्स हैं, इनैंशियोमर्स की तरह वहां भी दो ही फॉर्म्स हैं, या तो R फॉर्म या S फॉर्म। अगर राइट हैंड साइड में रोटेशन चलता है या क्लॉकवाइज रोटेशन चलता है, अब देखेंगे हम रोटेशन किसका चल रहा है, यहाँ तो कोई लाइट वगैरह है ही नहीं, रोटेशन चलता है मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर, मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर, मॉलिक्यूल भी नहीं, जो ग्रुप्स अटैच है उनका ऑर्डर हम देखते हैं। अगर ऑर्डर क्लॉकवाइज चल रहा है, अभी एग्जांपल से बताऊंगा, तो राइट R कहलाता है फॉर्म। अगर लेफ्ट साइड चल रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो S फॉर्म कहलाती है उस मॉलिक्यूल की। ये भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां मैं लिख देता हूं R and S सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इनको बोलते हैं सिनिस्टर एंड रेक्टस सिस्टम। सिनिस्टर स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, रेक्टस स्टैंड्स फॉर राइट। दीज आर द डायरेक्शन। इसमें हम कंसीडर करते हैं atomic number of groups attached with chiral carbon। देखिए यहां भी कायरलिटी यूज होती है, ऐसा नहीं है किसी भी कार्बन या किसी भी अदर जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो भी एटॉमिक नंबर उनको हम कंसीडर करेंगे, फिर उनका एक ऑर्डर पुट करते हैं हम। उस ऑर्डर पुट करने के बाद, नंबरिंग देने के बाद, फिर हम डायरेक्शन देखते हैं कि ऑर्डर किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर। अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है या राइट जा रहा है तो वो S फॉर्म होती है, नॉट S, सॉरी, R फॉर्म, राइट फॉर्म। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है तो वो S फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना हाइयर होगा एलिमेंट का, मोर हाइयर लो रैंक, उतना ही कम नंबर देंगे उसको हम, या उसको फर्स्ट चॉइस देंगे, प्रायोरिटी पहले देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ग्लिसरल्डिहाइड से समझते हैं, ये एक ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, CH2OH। फिर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में OH ऊपर की तरफ है अबो द प्लेन और H बिलो द प्लेन, ये सेकंड ही कार्बन है। फिर थर्ड कार्बन है एल्डिहाइड, नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3। हम देखते हैं ये ग्लिसरल्डिहाइड R है या S है। ठीक है, इसके साथ देखिए ये चीज समझेंगे ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या अटैच है, इधर CH2OH है, इधर OH है, इधर एल्डिहाइड है। तो हमें सबसे पहले एलिमेंट देखना है, पहला एलिमेंट नंबरिंग करेंगे हम। यहाँ पर पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है। तो कार्बन को छोड़िए, सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे हाई है, ठीक है 8। तो इसको पहला नंबर दे दिया, प्रायोरिटी पहली दे दी इसको 1। फिर हमने देखा यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH है। ठीक है, अब इसमें किसको नंबरिंग हम पहले दे भाई, क्योंकि लगभग दोनों में ही कार्बन है, तो फिर हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट जी हमारा है इसमें H, तो दोनों में ही H है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर O है, इसमें भी O है। ठीक है, यहाँ तक लगभग ये इक्वल है। फिर उससे आगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, यानी ये और लो कर रहा है इस मॉलिक्यूल को। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, CH2OH से, तो इसको मैं सेकंड नंबर दे दूंगा। ठीक है, थर्ड
यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हाइड्रोजन से, तो इसको थर्ड नंबर दे दूंगा। देखिए एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पर कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद इसको फोर्थ नंबर दे दूंगा। चारों ग्रुप्स को एक सीरीज दे दी, तो 1 से 2 की तरफ बढ़िए, ये बढ़ गए हम, 2 से 3 की तरफ और 3 से 4 की तरफ। देखिए जो हमारा मूवमेंट हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड में। फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, आर एंड एस सिस्टम में ऑर्डर देखते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जो ग्रुप्स अटैच है उस पर जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर देखिए। OH को सबसे पहले इसलिए दे दिया गया क्योंकि OH जो है वो सीनियर मोस्ट है, ऑक्सीजन सबसे सीनियर है कार्बन हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर के केस में, तो ये नंबर 1 हो गया। यहाँ पर CH2H और CHO में ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन यहाँ पर H होने की वजह से इसका ऑर्डर पहले रहेगा, इसका जो रैंक है वो, इसका कद बड़ा रहेगा, इसको 2 दे दिया नंबर। ये 3 क्योंकि हाइड्रोजन से बड़ा है कार्बन एटॉमिक नंबर में, और ये 4। तो ये क्लॉकवाइज चला, ये राइट चला, तो ये कहलाएगा R। ये राइट चला है, पार्डन, दिस विल बी R ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से देखिए S ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये एग्जांपल और बता देता हूं मैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता CH2OH, दिस वन, यहां H होता, ये OH इधर होता, और इस तरफ दिस इज नॉर्मल, नॉट अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन तो एल्डिहाइड होगा यहाँ, ये OH होता, और एल्डिहाइड जो है वो अबोव द प्लेन होता। ठीक है, तो अब यहाँ नंबरिंग करते हैं। देखिए नंबरिंग तो वही रहेगी, इसको सीरीज नंबर 1 देंगे हम, इसको सीरियल नंबर 2 देंगे हम, इसको 3 देंगे, और इसको 4 देंगे। अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में ये होता तो देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप। तो ये कहलाता S सिनिस्टर लेफ्ट, S ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। L और D सिस्टम में तो डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप हम देख लेते थे भाई, लेफ्ट में या राइट में। अगर एक से ज्यादा कायरल है तो थोड़ा दिमाग ये लगाना था कि फारदेस्ट कायरल कार्बन देखते थे हम, जैसे ग्लूकोज में, फिर उस पर देख लेते थे OH राइट में या लेफ्ट में। यहाँ हमें ऑर्डर डिटेक्ट करना पड़ता है, वो भी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो ऑर्डर के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको सबसे पहले नंबरिंग कर दी जाएगी। अगर ओवरलैपिंग होती है जैसे CHO, तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो वो प्रिमिटिव है, क्योंकि इसके अंदर और मॉलिक्यूल्स नहीं है। हाइड्रोजन उसको छोटा बना रहा है जबकि ऑक्सीजन इसको बड़ा बना रहा है, तो इसको ज्यादा बड़ा नंबर दिया हमने। ऑक्सीजन सबसे पहले ही होता तो इसको भी सेकंड नंबर या उससे भी पहले नंबर हम दे सकते थे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन देखिए पहले। तो एटम्स का जो है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम देखेंगे, जो बड़े होंगे उसको पहले ऑर्डर देंगे, और फिर हम डायरेक्शन देखेंगे, ऑर्डर पुट करके डायरेक्शन देखेंगे। अगर वो क्लॉकवाइज है तो R फॉर्म है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो S फॉर्म है। दिस इज द मॉडर्न सिस्टम of absolute configuration and less used. So far I have discussed plus, minus, D, L, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर थे। L and D system, S and R system. You can also relate them, but it is not sure कि जो प्लस ग्लूकोज है, यानी जो लाइट को राइट हैंड में रोटेट करता है, वही ग्लूकोज डी ग्लूकोज भी हो, उस पर फंक्शनल ग्रुप OH साइड में ही, राइट साइड में। आप रिलेट कर सकते हैं बट ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज श्योर। तो अलग अलग चीजें हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक अलग प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एक अलग प्रॉपर्टी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज सम अदर बायो